Yes. Namaste bachcho. Today we are going to start chapter metals and non-metals. So before starting this chapter, you must know about this classification that matter. What is matter? Anything that occupies space and has mass is known as matter. I think you have learned in earlier classes also. And matter is classified into two types: mixture and substance. Mixture means a matter which is composed of different kinds different kind of particles is called mixture, while substance is what? A matter which is composed of same kind of atoms or molecules, you can say, or particles, is called a substance. So substance is also known as pure substance. Like oxygen is a pure substance, iron is a pure substance. Because if you take iron, if this is a block of iron, it is composed of same kind of particles. So we can say this is a matter. It occupies space and has mass. But when we classify, then it is kept in substance. Now further, the classification of mixture is not, we are not going to classify mixture here, but here you see substance. Pure substance can be classified into two parts. What are the two parts? Elements elements and compounds. Now what are elements? Here you see iron. Iron is made up of same kind of atom, or same kind of, here its a constituent particle is there, same kind. So it is called iron. But when we know that when iron is kept in open, that in presence of oxygen and water, you know that a brown layer appears on iron. This brownish layer, this brown layer is not iron. It is a compound of iron. This is Fe2O3 dot XH2O. This compound is called iron oxide. Iron oxide, it is hydrated oxide of iron. It is also known as rust. It is also known as rust. Now here you see, what is the difference between iron? Here the symbol of iron is Fe, and here the brown layer appeared on iron metal is iron oxide. Now here you see, iron is made up of same kind of atom, iron, but this brown layer, this compound is made up of iron and oxygen. Two different compounds, different elements are present. But here the appearance of this brown layer is homogeneous. एक ही जैसा वो लग रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें you can see iron and oxygen particles differently. You can see it is homogeneous. So it is because its property is different from iron, and here iron and oxygen are chemically combined. So this is called compound. Now we are not going to classify about compound. We are not going to study more about compound in this chapter. We study about the elements. Further, elements are classified as metals, non-metals. Mainly metals and non-metals are there, and one more, metalloids. Now elements are further classified as metals, non-metals, and metalloids. So metals, non-metals, all these are made up of same kind of atoms. The kind of atoms is same. Now in this chapter we learn about metals and non-metals. So first you note down it. Now I am going to remove it.
So see, we know about metals, more about metals. I think you have learned about, or you have seen the use of metals at your home. आप देखे होंगे कि आपकी मदर यूज करती हैं गोल्ड, गोल्ड ऑर्नामेंट्स यूज करती हैं. इसके साथ साथ यू हैव सीन दैट एट योर होम डिफरेंट आयरन आर्टिकल्स आर देयर. आप आयरन के बने हुए बहुत सारा आप दरवाजे में देखोगे, ठीक है, जो कील यूज करते हो, नेल्स यूज करते हो, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन. And some compound or some mixture that is called alloy, alloy of iron is used, that is called steel. Further we know about the steel. तो आप डिफरेंट मेटल्स का यूज करते हैं घर में, ठीक है. आप जैसे पूजा का बर्तन में आप ब्रास का यूज करते हैं, ब्रास जिसको आप पीतल भी बोलते हैं, ठीक है. ब्रॉन्ज यूज करते हैं, जैसे उसको आप कांसा भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल यू हैव सीन. तो ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मेटल. Now, in this chapter, we learn from where we are getting metal. From where we are getting metal. So, metal is present in the earth crust. Here, this is the upper surface of earth, and when mining of the earth surface is done, then means in the upper surface, that is called earth crust. Here you see, this is the earth crust. Metals are present in the earth crust as well as in deeper inside the earth crust in form of generally metal compound as well as in free state. Listen, there are two types of metal: highly reactive metals, or three types you can categorize: highly reactive metals, moderate reactive metals of moderate reactivity, metals of moderate reactivity, and metals of low reactivity. So highly reactive metals occur in nature in combined form, like sodium, potassium, these metals, calcium. These metals are very high. These are highly reactive metals. These are occurring in the nature in form of their chlorides, and some metals they occur in the nature in form of oxide. Like you have seen, you know about NaCl. This is sodium chloride. Sodium chloride. You know about the रॉक सॉल्ट आप जानते होंगे, सेंधा नमक जिसको बोला जाता है. तो रॉक सॉल्ट कंटेन्स सोडियम क्लोराइड. हियर सोडियम मेटल इज प्रेजेंट, बट इट इज present it is not in free state. It present in its chloride state. This is the sodium chloride. Some other metals are there, they are present in form of their oxide, like magnesium oxide. Some other like they occur in nature in form of carbonates, like calcium carbonate, where here calcium metal is present in the earth crust in form of carbonate, like limestone. You have heard the name of limestone. ये चूना पत्थर जिसको आप बोलते हैं. तो ये लाइमस्टोन में क्या होता है, कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. तो हम क्या देखें कि मेटल जो है वो अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, या तो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, या फ्री स्टेट में आप पूछोगे कि सर कौन कौन सा मेटल्स है जो कि फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है. तो ये अभी आप देखें कि सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में रहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में भी रहता है, ऑक्साइड के फॉर्म में भी रहता है, कार्बोनेट के फॉर्म में भी रहता है. कैल्शियम जैसे कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलता है, मेनली कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है. जैसे लाइमस्टोन, इसको जब हीट करेंगे तो हमको ये डिकम्पोज होता है और आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है. जो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप चूना बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, और क्विक लाइम को जब वाटर में डालते हैं तो वो
क्या बनता है आपको, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप स्लैक लाइम करते हैं और उसका यूज जो है व्हाइट पासिंग वगैरह में करते हैं। तो ये तो मेटल्स का हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेटल्स जो है इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स मेनली क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा ज़्यादातर, और मॉडरेट रिएक्टिविटी का जो मेटल है वो जनरली ऑक्साइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। तो जैसे कि आप आयरन, आयरन जो है वो FeS सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, ये सल्फाइड के फॉर्म में हो गया आयरन। ये सारा कहाँ मिल रहा है आपको, अर्थ क्रस्ट में। और कैसे मिलेगा, जब माइन करेंगे आप, जब इसको इस माइनिंग के थ्रू आप इसको निकालते हैं अर्थ क्रस्ट के नीचे डीप अंडर द सरफेस, ये जो मटेरियल आपको प्रेजेंट है, ठीक है। करने के बाद आपको जो ये माइन करने के बाद ये जो मेटल्स का जो मेटल्स जो कि अर्थ सरफेस के अंदर है उसको आप निकाल सकते हैं। वो फ्री स्टेट में ये नहीं होगा, ये कंबाइंड स्टेट में है। जिसको माइन करके निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल। उसको क्या बोलते हैं, ये जो नेचर में ये प्रेजेंट है, ये सभी क्या है, एक मेटल। जैसे ये सोडियम का मिनरल हो गया, ये कैल्शियम का मिनरल, यहाँ मिनरल बनेंगे। इसमें केवल सोडियम ही नहीं मिल रहा, आपको क्लोरीन भी मिलेगा। अब क्लोरीन एक मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ये आयरन का हम बता रहे थे कि आयरन सल्फाइड के फॉर्म में भी है, आपको आयरन जो है FeS2 के फॉर्म में रहता है, इसको आयरन पायराइट बोलते हैं। उसके बाद Fe2O3 जो है हेमाटाइट और जो है उसके फॉर्म में भी रहता है। ये हेमाटाइट और जो है ये उसके फॉर्म में रहता है, ऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ आयरन रहता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि मेटल्स जो है ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, इस तरीके से अर्थ क्रस्ट में मिलता है। इसको माइन करके निकालते हैं फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट। तो दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। अब देखो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जैसे अब देखो आप गोल्ड जो है, गोल्ड आप स्वर्ण रेखा रिवर का नाम सुने होंगे, जमशेदपुर में है स्वर्ण रेखा नदी। तो ये स्वर्ण रेखा जो रिवर है, वहाँ पर मजदूर लोग जो है, द पुअर पीपल्स, दे आर कलेक्टिंग फ्री गोल्ड। अब ये गोल्ड क्या है, गोल्ड पार्टिकल्स आर फ्लोइंग इन द रिवर। वो कहाँ से आता है, वो किसी माइंस के थ्रू वो क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ से जो गोल्ड जो है उस वाटर में जो है फ्लो करके वो सैंड के साथ आ जाता है। और कलेक्टर्स जो है, जो पुअर पीपल्स है, उसको कलेक्ट करता है, और छोटा छोटा जो पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड आर कलेक्टेड बाय द पीपल्स। इट मीन्स gold are occurring in nature in free state, here no any other elements are combined with gold। इस गोल्ड ये फ्री स्टेट में है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो लो रिएक्टिव मेटल जो है वो फ्री स्टेट में नेचर में रहता है, ठीक है। लेकिन इसको भी जब आप माइन करके निकालते हैं तो इसको भी मिनरल बोलेंगे। तो मिनरल्स में क्या हो गया, कि मेटल्स या तो कंबाइंड फॉर्म में है, मतलब किसी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाए हुए हैं, या फ्री स्टेट में है। तो फ्री स्टेट में जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये आपको फ्री स्टेट में भी अवेलेबल होता है माइंस जो अर्थ क्रस्ट में। तो आप मिनरल्स को कैसे यानी कि मेटल्स जो है वो कहाँ है, वो अर्थ में कहाँ है, उसके अर्थ क्रस्ट में है, ठीक है। यानी कि मेटल्स, ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए, ये क्या डिस्कस किए, अकरेंस ऑफ मेटल्स। ये क्या डिस्कस किया हम लोग, अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स जो है अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में रहता है, कैसे रहता है, ठीक है ना। अभी आप समझे कि ये मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़े, तो आप मिनरल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स को हम पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो, तो अकरेंस ऑफ मेटल्स, इसमें आप देख रहे हैं हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं, मिनरल्स को। So minerals are what?
minerals are the inorganic substances found deep under the earth surface। और एग्जाम्पल्स में क्या हो सकता है जी? एग्जाम्पल्स में अब इसमें देखो, इसमें आप ये जो समझ लो कि इसमें जो मेटल्स है या तो फ्री स्टेट में रहेगा या तो कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। तो उसका हम प्रोसेस करके, उससे प्रोसेसिंग करके, सम प्रोसेस जिसको मेटलर्जी बोलते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी वी कैन एक्सट्रैक्ट, आप उससे मेटल को बाहर निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम उस प्रोसेस को आगे चल के पढ़ेंगे। तो पहले आप ये लिखो, इसमें एग्जाम्पल में कुछ आप लिखो, जैसे कि रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट इज अ मिनरल। अब इस रॉक सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम। ठीक है, उसके बाद आप हेमाटाइट, हेमाटाइट दिस इज अ मिनरल ऑफ आयरन। इसका जो फॉर्मूला होता है Fe2O3। उसके बाद आप बॉक्साइट को देखो, बॉक्साइट इज अ मिनरल ऑफ एल्युमिनियम Al2O3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि these are the minerals and from which we can extract metals। अब देखो एक चीज ध्यान से, आप मिनरल्स जो है इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, एक टर्म आता है ओर्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट कर लिए डेफिनेशन। चलिए अब हम लोग ओर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स और ओर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ओर्स देखिए, ये ओर्स क्या है? मेनली ओर, ये क्या है इसको आप समझो। जैसे ये आयरन, ये देखो, आपको हम दो मिनरल दिखा रहे हैं। ये मिनरल है, आप पहले इसको समझो। एक एग्जांपल से हम लोग समझा रहे हैं। मिनरल ऑफ आयरन, हमारे पास दो ठो मिनरल है। एक मिनरल है ये हेमाटाइट, इसका जो फार्मूला होता है वो Fe2O3, ये भी मिनरल है। ठीक है, और दूसरा जो है आयरन पायराइड, इसका फॉर्मूला होता है Fe2। बोथ आर द मिनरल्स ऑफ आयरन। यहाँ देखो, आयरन एक मेटल है, ये दोनों ही जो है जमीन के नीचे से निकाला जाता है। एक आयरन पायराइट है और एक हेमाटाइट है। इन हेमाटाइट का आप जानते होंगे, मेनली इट अकर्स, इसका जो मेनली जो डिपॉजिट्स है वो झारखंड के जमशेदपुर में जो है, ठीक है, मेनली सिंहभूम में जो हेमाटाइट का माइंस है, और वहां से आपको ये निकाला जाता है। अब दोनों ही मिनरल्स है, बोथ आर द मिनरल्स ऑफ आयरन, बट व्हाट इज द डिफरेंस? व्हेन वी एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम हेमाटाइट, हेमाटाइट से अगर आप आयरन निकालते हैं, यहाँ आयरन है प्रेजेंट, ये आयरन को आप निकालते हैं यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग। अब देखो, आपको आयरन दोनों से निकल सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आयरन जो मेटल आएगा, फिर वो मार्केट में जो है उससे यूटेंसिल्स बनेगा, उससे बहुत सारा जो आयरन आर्टिकल्स है वो तैयार होगा, और फिर मार्केट में हम उसको खरीदेंगे। तो अगर वो बहुत महंगा होगा, अगर वो हाई कॉस्ट का होगा, तो उसका परचेजिंग कम होगा। तो इसलिए इंडस्ट्री ऐसा प्रोसेस को अपनाती है, इंडस्ट्री चाहती है कि हम मेटल वो एक्सट्रैक्ट करें जो प्रॉफिट में हो, जो लो कॉस्ट पे जिसका हम एक्सट्रैक्शन कर पाए। मेटल जैसे हमको आयरन निकालना,
हेमाटाइट अगर हम मिनरल लेते हैं और इससे आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबली वी कैन एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम हेमाटाइट प्रॉफिटेबली, या आप इसको बोल सकते हैं कि लो कॉस्ट होगा, ये लो कॉस्ट होगा, ठीक है। और इससे अगर आप आयरन निकालते हैं आयरन पाइराइट से तो ये हाई कॉस्ट होगा। अब बताओ जरा आप कौन सा आयरन लेना पसंद करेंगे, महंगा या सस्ता? तो डेफिनेटली यू रिक्वायर आयरन चीपर। तो इसलिए इंडस्ट्री में जो है लार्ज प्रिपरेशन किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में आयरन बनाया जाता है, क्योंकि उसका आपको यूज करना है, आपको ब्रिज बनाना है, आपको बहुत सारा चीज काम करना है। तो अगर वो महंगा होगा, अगर प्रोसेसिंग उसका महंगा होगा तो उसका जो परचेजिंग कम होगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में भी तो देना है जी। तो इसलिए क्या किया गया कि कौन सा मिनरल्स को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम आयरन को लो कॉस्ट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हेमाटाइट को। तो देखो ये हेमाटाइट भी मिनरल है और आयरन पाइराइट भी मिनरल है, लेकिन हम प्रॉफिटेबली आयरन को किस मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हेमाटाइट से या आयरन पाइराइट से? डेफिनेटली आयरन हेमाटाइट से। तो इसलिए हेमाटाइट बोथ आर द मिनरल्स, बट दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। देखो ये भी मिनरल है, पर इससे आयरन जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो प्रॉफिटेबली होगा, लो कॉस्ट का होगा। तो इसलिए ऐसा मिनरल को हम लोग कहते हैं ओर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओर। तो अब ओर है क्या? It is a kind of mineral. Those minerals from which metals can be extracted profitably. जिससे हम मेटल्स को कम खर्च पे निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसा मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर। तो ओर को अब हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट यू नोट डाउन दिस, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। So I think you have noted. Now here you see ores. Now we can define ores. Those minerals from which metals can be extracted profitably are called ores. तो अब आप समझ सकते हो ores का। फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो एग्जाम्पल में आप ये बोल सकते हो कि हेमाटाइट is an ore of, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं आयरन। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो बॉक्साइट is an ore of aluminium. So these are the, it means bauxite is what? Bauxite is also a mineral, but from this mineral extraction of aluminium is cheaper, easy or profitably. So that's all for minerals and ores. So that we have discussed the occurrence of metals, how metals occurred in the earth crust, and how can we differentiate the minerals. Now we discuss about the process of metallurgy. What is metallurgy? With the help of metallurgy, we can extract the pure metal like aluminum, iron from its ore. From its ore, here hematite is an ore. From hematite, how can we extract iron? So we learn this, the simple methods of simple process here. Only steps we are going to know how can we extract, how
metals are extracted in industry. In industry, like the steel factories are there. In steel factory, iron is extracted from its ore. Clear? So now we learn about the metallurgy. See here. What is metallurgy? So before going to discuss the metallurgy, metallurgy involves three stages. First, it is concentration of, we discuss here, concentration of ore. Second is reduction of simply you can write metal oxide you can say, or sometime or simple you write reduction of ore, and third one is refining. Here after this method means this is the first step, this is the second step. After second step we get the metal, but this metal is impure, it contains some impurity. The final method is final step is refining, or that is also called purification. So refining of metal. So these steps are there. Now these steps are performed sequentially in a sequence. सबसे पहले हम कंसंट्रेशन करेंगे, उसके बाद रिडक्शन करेंगे, उसके बाद रिफाइनिंग करेंगे, इसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, प्योर मेटल। तो यहाँ आप क्या लेके चल रहे थे, ध्यान से देखो जरा, मेटलर्जी को आप समझोगे, ये ओर लेके चल रहे थे, ध्यान से देखो जरा, आप लिए ओर, इसका कंसंट्रेशन किए, इसका रिडक्शन किए, इसका रिफाइनिंग किए, और इसके बाद जो आपको मिलता है ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये तीनों स्टेप के बाद आपको मिलता है प्योर मेटल। प्योर मेटल, ध्यान से आप देखेंगे कि यू आर गेटिंग प्योर मेटल फ्रॉम ओर, इट्स ओर, लाइक here hematite is there and you are extracting iron, and these are the steps, concentration, reduction and then refining. So it is in sequence, ऐसा नहीं कि पहले रिफाइनिंग कर दिया फिर कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन, सेकेंड स्टेप रिडक्शन और थर्ड स्टेप रिफाइनिंग। ये जो सीक्वेंस में जो ये प्रोसेस हो रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप ओर से प्योर मेटल निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग मेटलर्जी। तो ये मेटलर्जी का डेफिनेशन हो गया। तो मेटलर्जी को आप कैसे बोलेंगे, अ सीक्वेंस ऑफ processes involved to extract pure metal from its ore is called metallurgy। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसको हम इधर ब्लॉक में कर दिए, is called metallurgy। I think you can see. So now you can define metallurgy. So metallurgy is what? A sequence of processes involved to extract pure metal from its ore is called metallurgy. And what are the steps? Different steps: concentration, reduction and refining.
Now, if you want to understand, sir, what is concentration, what is reduction, so first you note down. I will explain in a brief because that explanation is not required, but I am going to explain one by one in a brief so that you can understand these processes. That is not required to write in the examination. It is only for understanding. So note down it. So now we discuss each step a little bit. See here. First step is what? We are going to explain the steps of metallurgy. First, concentration of ore. So what is this? Listen. It is what? Simple removal of impurities present in the ore is called concentration. So here see how the impurities present in the ore is removed. So just I am going to give some examples. Like if we have an ore of some metal and it contains some impurities which are heavier than the metal. जैसे देखो आप जब मिनरल्स निकाला जाता है तो उसके साथ सैंड है, सॉइल है, ये सब फिजिकली कंबाइंड इम्प्योरिटीज है जो उसके साथ है। तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे? तो उसको रिमूव करने के लिए आप हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज करते हैं। ये हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब वाटर के फ्लो के थ्रू जो है उसके हेल्प से हम लोग जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है कि जैसे ये एक स्लोप की जैसा है, ठीक है, और इस पे बहुत सारा हर्डल्स है, ये हर्डल्स है, ठीक है, और यहाँ जो है ये हम लोग जो पाउडर्ड ओर लिया गया, पाउडर्ड ओर जो है, पाउडर्ड ओर को इस पे, ये पाउडर्ड ओर है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम बेस पे नहीं है, समझने के लिए। ये पाउडर्ड ओर है, पाउडर्ड ore, clear? Now this powdered ore is just dropped on the flow of water. Here water is going to flow. अब इसके साथ क्या होगा, जो हेवियर जो जब और पार्टिकल्स हेवियर होगा तो और पार्टिकल्स हेवियर है और जो इसके साथ इम्प्योरिटीज है, फिजिकली कंबाइंड इम्प्योरिटीज है, वो थोड़ा सा लाइटर है। तो ये क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल्स वाटर के फ्लो में ये गिरेगा, ये हो गया फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो हर्डल्स में जो है, ये जो तुम्हारा जाके प्योर ओर है, ये ओर ही है, यहाँ मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा, ओर पार्टिकल्स यहाँ हर्डल्स में फंस जाएगा और इम्प्योरिटीज जो है वो वास्ट अवे हो जाएगा, इम्प्योरिटीज जो है वो वास्ट अवे हो जाएगा, इम्प्योरिटीज गेट वास्ट अवे। तो इन दिस वे you have removed the impurities present in the ore. So after this ore जो है वो ore में impurities जो physically combined impurities नहीं रहेगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे concentration of ore। तो concentration of ore जो है डिफरेंट जो नेचर पर डिपेंड करता है, ये जो मिनरल्स आप ले रहे हैं उसके नेचर पे और उसका इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे एक मैग्नेटिक सेपरेशन है, जैसे ये आप देखो, ये एक कन्वेयर बेल्ट को जो है, कन्वेयर बेल्ट ये बेल्ट है और ये जो इसका रोलर है यहाँ पर ये मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं कंसंट्रेशन में?
तो मान लेते हैं कि ये हम आयरन का एक ओर ले रहे हैं, ये पाउडर्ड ओर है। इसमें जो आयरन है, मान लेते हैं कि जो ओर है वो मैग्नेटिक है और उसमें जो इम्प्यूरिटीज है अगर वो नॉन मैग्नेटिक है, या हो सकता है कि यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ जो ओर है वो मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक होने के कारण क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये फिगर आप नोट कर लो, तो हम मिटा देते हैं इसको। ये वाला प्रोसेस क्या है, इसका नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको आप नोट करके रखेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग का ये एग्जांपल है। अब देखो ये है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये जस्ट आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ ये जो कन्वेयर बेल्ट इस तरीके से मूव कर रहा है और ये मैग्नेटिक है, ये पोल मैग्नेटिक है। अब इस पे जो है ये पाउडर्ड ओर आ रहा है। ये पाउडर्ड ओर में क्या क्या है जी, पाउडर्ड ओर कंटेन्स ore particles plus impurities, ore particles plus impurities. Now these powdered ore just move on the conveyor belt, and when it falls, जैसे ये फॉल करेगा तो इसमें जो मान लेते हैं कि ये जो ओर पार्टिकल है, इफ इट इज मैग्नेटिक, तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और यहाँ हीट बनाएगा अपना। और जो इम्प्यूरिटीज है, अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो ये दूर गिरेगा और यहाँ हीट बनाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ओर और इम्प्यूरिटीज उसको हम लोग सेपरेट कर दिए, इम्प्यूरिटी सेपरेट कर दिए। तो इस मेथड को, यहाँ ये मैग्नेटिक है तो इसको सेपरेट कर दिए, तो इस मेथड को क्या हम बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो क्या आप डेफिनेशन दे रहे हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। So this is magnetic separation. So different methods are there by which we can separate the impurities from the ore. Like one more method is there, froth flotation method. With the help of that we can separate the impurities present in the sulfide ore. जैसे जिंक सल्फाइड, सल्फाइड ओर अगर है उसमें जो इम्प्यूरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए कहते हैं। तो उतना हम इसमें डिटेल्स में अब नहीं जाएंगे, आप कंसंट्रेशन को समझ गए होंगे। Now we will move to the second step, that is called reduction. So I am going to rub this, note down. Now second step is this. Second step, reduction. Reduction is what? Mainly the here in this step metal is extracted from ore. Metal is extracted from ore. Ore जो भी है, अगर ये ऑक्साइड ओर है उससे मेटल को निकालना, क्लोराइड ओर है तो उससे मेटल को निकालना। तो जैसे ये मान लेते हैं कि आयरन का जो ऑक्साइड है Fe2O3, इससे आयरन को जो एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, तो मेनली ये जो स्टेप है ये यही होता है रिडक्शन। तो एक तरह से आप देखो ये ऑक्साइड और है, इससे हम आयरन को बाहर निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको आप क्या करते हैं, कार्बन के साथ कोक Fe2O3, इसको जो है कोक, कोक आप समझते हैं, कार्बन सॉरी कोक कैसे बनता है, हार्ड कोक, सॉफ्ट कोक आप पढ़े होंगे। जब कोल को जो है, कोल का जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको कोक मिलता है। तो कोक इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जब इस कोक को आयरन के ऑक्साइड के साथ, यहाँ हेमाटाइट के साथ जब हीट किया जाएगा, ये हीट किया जाएगा, देखो ये सब, ये रिएक्शन आपको क्लास 8 में लिखना नहीं है, लेकिन ये समझाएंगे तब आपको ये रिडक्शन समझ में आ जाएगा। तो देखो जब ये आयरन के ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ, आयरन से हट जाएगा और कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कार्बन का जो है ऑक्सीजन के प्रति जो एफिनिटी है वो ज्यादा है। कार्बन हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन देन आयरन, तो इसलिए ये ऑक्सीजन को इससे हटा लेगा और यहाँ पर जो आपको मिल गया ये आयरन और प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इस तरीके से बैलेंस भी हम कर लिए। अब देखो यहाँ पर आप, ये बैलेंस हो गया, ये है कोक। सो विद द हेल्प ऑफ कोक व्हाट वी हैव डन, ये जो ऑक्सीजन था इसके अंदर का ओर में, जो हेमाटाइट ओर में जो ऑक्सीजन है उसको हटाया, उसको कौन, कार्बन कंबाइन कर लिया। तो अब जो आपको क्या मिल गया, मेटल मिल गया फ्री स्टेट में। बट दिस मेटल इज नॉट प्योर,
एट दिस स्टेट। तो ये इम्प्योर है। तो एक स्टेप और हमारा जाएगा, वो क्या होगा, रिफाइनिंग का प्रोसेस, और इससे इम्प्योरिटी हम हटाएंगे। तो यहाँ आप देखो, आप अगर ये आप इस प्रोसेस को आप समझ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या था, ये ओर है, ओर ऑफ आयरन हेमाटाइट, और उससे ये क्या निकल गया, मेटल। तो ये जो प्रोसेस हम यहाँ अपनाए हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट किए। तो इस प्रोसेस को कहा गया रिडक्शन। इसको क्या क्या कहा गया, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर is called रिडक्शन। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इस स्टेप में मेटल को जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किससे, उसके ओर से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल दिए रिडक्शन। बट हियर एट दिस स्टेट द मेटल इज इम्प्योर, द मेटल इज इम्प्योर, इम्प्योर मेटल। सो थर्ड स्टेप इज व्हाट, प्यूरिफिकेशन। ये मेटल कैसा होगा, जो ये होगा इम्प्योर मेटल, ये हो गया इम्प्योर मेटल। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि मेटल को प्यूरिफाई करेंगे। वी प्यूरिफाई द मेटल टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। तो वो कैसा इम्प्योरिटीज होगा, जो उस मेटल के अंदर प्रेजेंट है, उस वो फिजिकली कंबाइंड नहीं है, उसको हम वाटर से वॉश करके या एयर के थ्रू या किसी और फिजिकल प्रोसेस से रिमूव करना आसान नहीं है। तो उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हमको डिफरेंट जो है रिफाइनिंग का प्रोसेस किया जाता है। यहाँ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो अभी आप इसको केवल सिंपल सा डेफिनेशन लिखिए कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, और या आप बोल सकते हो रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड इट्स प्यूरिफिकेशन। तो इस स्टेप को आप लिख लेते हैं, थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट यू नोट डाउन इट। ये एग्जांपल है, ये इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप कॉपी में लिखेंगे तो एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको स्टेप्स पूछता है जनरली। ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग। ये ट्रायंगल का जो साइन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है हीट। इसका मतलब क्या होता है, हीट। तो एट हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है, आकर हो रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब है हीट। चलिए, तो थर्ड स्टेप केवल आप डेफिनेशन लिखिए रिफाइनिंग का। इसको पहले नोट कर लीजिए आप। हाँ जी, देखिए थर्ड स्टेप क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो क्या हो गया, इसको आप बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ impure metal to get pure metal is called refining, is called refining। ठीक है, तो इस तरीके से we have finished the 3 steps of metallurgy in details also. I think you have enjoyed this class. So in next class we discuss the properties, physical properties and chemical properties of metals. If you want to get the class easily, then you must subscribe the channel. Thank you.